Okay, coming to exercise 13.2. Question number 9. Coming to question number 9. The question is like, find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank. Closed cylindrical petrol storage tank means it has a top as well as it has a base. इस टैंक का टॉप भी इंक्लूडेड है, बेस भी इंक्लूडेड. क्लोज्ड का मतलब है we are including both its top as well as its base. That has a diameter storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Its diameter is given as 4.2 meter and its height is it's 4.2 and its height is given as 4.5 meter. In the first bit, first bit ही है कि इसका lateral surface area find करना. In the first bit we have to find the lateral surface area. So इसका lateral surface तो होगा नहीं, इसका होगा क्या, curved surface area होगा. So what is the curved surface area of a cylinder? What is the formula for that? यहाँ पर बोला हो, yes, it is 2 pi r h. 2 pi r plus h means that is the total surface area. 2 pi r h. 2, the value of pi is given as 22, or else we know that it's 22 by 7. Its radius is half of the diameter. We all know that. I think there is no need to explain that thing. That is 4.2 by 2. Half of the diameter is your radius. Coming to the height, it's 4.5. कोई मुझे बता पाएगा क्या कि डायरेक्ट क्या आ रहा है इसका सॉल्व करने के बाद? क्या आ रहा है बता पाओगे या मैं कैलकुलेट करूं? किसी ने कर रखा है? मल्टीप्लाई करो 13.2 इंटू 4.5. मल्टीप्लाई करो फास्ट. हाउ मच? I didn't get you. Okay, it's coming out to be 59.4 meters square. This is the curved surface area. In the second bit, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? It is asking how much steel was actually used. In actual, how much steel are we using if 1/12 of the total steel was wasted? This we have just calculated the curved surface area, but to make this tank we have to include its top as well as a base because it is a closed cylinder. यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि क्या है, ये क्लोज सिलेंडर है, क्लोज्ड है आपका, तो इसमें क्या है, पेट्रोल खुले सिलेंडर में तो रखेंगे नहीं, क्लोज्ड में ही रखेंगे. सो वी हैव टू इंक्लूड इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ टॉप एंड बेस. दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. यही होगा पाई आर स्क्वायर टॉप का, pi r square base का, it is 2 pi r square. Just let's calculate it. This is 2 into 22 by 7 into r square is nothing but 4.2 by 2
and 4.2 by 2. Calculate it. Multiply 6.6 by 4.2. I think 8 2 7. It's 7 2. फाइन, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया तो 8 आया. फाइन, इट्स 27.72 मीटर स्क्वायर. What is the total surface area of this tank now? The total surface area of the tank is 59.4 plus 27.72. Add them up. 87.12, I think so. It's coming out to be 87.12 meter square. Now the total surface area of the tank is 87.12 meter square. It means the steel that is required to make this tank is 87.12 meter square. But the thing that is given over here is we have wasted 1/12 of the total steel required. हमने बनाते समय क्या किया, जितनी स्टील हमें चाहिए थी उसी का 1/12 पार्ट हमने वेस्ट कर दिया है. तो स्टील वेस्टेड, हमने कितना स्टील वेस्ट किया है, 1/12 ऑफ द टोटल स्टील रिक्वायर्ड. सो 1/12 ऑफ द 87.12, इतना स्टील हमने वेस्ट किया है. सो हमें इतनी और स्टील चाहिए होगी इस पूरे सिलेंडर को या फिर इस पूरे टैंक को बनाने के लिए. तो इतनी और स्टील की हमें रिक्वायरमेंट है. इसको सॉल्व करो, जितना स्टील वेस्ट किया है आपको उतना वो मिल जाएगा यहाँ पे कि आपने कितने स्टील वेस्ट किया उसका एरिया मिल जाएगा. देन द एरिया ऑफ द और इज द स्टील रिक्वायर्ड, कैलकुलेट करो आप लोग तब तक उसको, टू मेक टैंक इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, जितना स्टील आपको चाहिए था प्लस जितना आपने वेस्ट किया है, that is 80. So it will come as 87.12 plus 7.26. If you are right with the calculations, you will get the answer. Add them up. If we have to make a tank, it means टैंक बनाना है, उसका मतलब क्या है, वी नीड टॉप एज वेल एज बेस. टॉप और बेस दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा. जस्ट फाइंड द टोटल. हियर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक निकालते हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, it was given that we have wasted 1/12 part of the total steel required. जितनी हमें स्टील की ज़रूरत थी उतनी ही स्टील का 1/12 पार्ट हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया while making this tank. So we have wasted its 1/12 part. Just calculate its 1/12 part and add it to the total surface area because we have wasted this much amount of the steel. इतना हमने वेस्ट किया है तो उसको इसमें ऐड कर देंगे and finally we'll get our answer. Is it clear? Shall I move to the next question? Okay, coming to the question number 10. टेंथ क्वेश्चन क्या है आपका, वी आर गिवन विद अ फिगर. फिगर क्या है, इट्स जस्ट अ सिलेंडर, an object in a cylindrical shape. And the question is like,
You see the frame of a lampshade. It is a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. We have to cover this lampshade with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter. The diameter of this frame is 20 centimeter and height is of 30 centimeter, and the height of this lampshade is given as 30 centimeter. This is 30 centimeter high. A margin of 2.5 centimeter is to be given for holding it over the top and bottom of the frame. अब इसमें क्या करना है, हमें एक मार्जिन देनी है. कितने की मार्जिन देनी है? 2.5 मीटर की मार्जिन देनी है, सो दैट इसको हम क्या कर सके, टॉप और बेस पे भी क्या कर सके, उसको कवर. मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स सेंटीमीटर, 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. अब आपको बताना है कि इस lampshade को कवर करने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है. दिस वॉज द डाउट फ्रॉम ओनली वन स्टूडेंट. सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने सॉल्व किया है? कैन दे एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व इट? Anyone? It is given in the question that you have to make a cover for the lampshade. अब lampshade का कवर बनाना है, तो इसमें तो ऐसा तो नहीं बोला कि आप टॉप और बेस पूरा कवर कर दोगे, तो वहाँ पे फोल्ड क्या करोगे? क्वेश्चन में क्या बोला है? यू हैव टू लीव मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सो दैट यू कैन फोल्ड इट ऑन द टॉप एंड द बेस. आपको मार्जिन छोड़ना है 2.5 सेंटीमीटर का, जिससे आप इसको टॉप पर भी फोल्ड कर सको. हल्का सा फोल्ड मतलब टेबल पे क्लॉथ डालते सोचो थोड़ा सा नीचे भी चला जाए, जिससे हटेगा नहीं बार बार वो. तो टॉप पे भी थोड़ा सा फोल्ड कर सको, बेस पर भी थोड़ा सा फोल्ड कर सको. अगर हम इसको टोटल ही कवर कर देंगे तो पूरा का पूरा तो ये कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी गॉट फ्रॉम हियर इज यू हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया, नॉट द टोटल सरफेस एरिया. टोटल नहीं फाइंड करना है, कर्व फाइंड करना है, बिकॉज यू हैव टू कवर दिस कर्व सेक्शन ऑफ दिस लैम्प. नेक्स्ट, यू हैव टू लीव मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑन द टॉप. इट मीन्स इसके टॉप पर 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको हाइट देनी है. And same condition is in the base. You have to leave margin of 2.5 centimeter in the base side. आपको बेस पर भी और टॉप पर भी दोनों जगह क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर का आपको स्पेस देना है. सो नाउ योर रेडियस इज 20/2 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर. And height of this lampshade is 30, but we have to leave margin of 2.5 and 2.5 on the both side. So the current height of the cloth is that we require 30 plus 2.5 plus 2.5, that is 35 centimeter. So curved surface area, the formula for that is we know 2 pi RH. शैल आई कैलकुलेट इट अगेन? कैलकुलेट करूँ क्या या कर लोगे? कैलकुलेट करूँ या कर लोगे? फाइव ज़ा 35, इट विल कम एज 10 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area that we require. We are done with question number 10. Coming to the question number 11. The student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder. एक स्कूल में कंपटीशन हुआ और वहाँ पर ये बोला गया सिलेंडर की शेप में पेन होल्डर्स हैं एंड यू हैव टू डेकोरेट दिस पेन होल्डर. आपको क्या करना है? इस पेन होल्डर को डेकोरेट करना है, सजाना है, जिसमें कि आप बहुत एक्सपर्ट हो.
making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. हर एक पेन होल्डर का रेडियस कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड इट मस्ट हैव अ हाइट ऑफ 10.5 सेंटीमीटर. इसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये कंडीशन आपको दिया हुआ है. If there were the Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to bought for the competition? अभी क्या है, जो कार्डबोर्ड इसके लिए स्कूल ने बोला कि आपको बस आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है. हम आपको क्या करेंगे, इसके लिए कार्डबोर्ड स्कूल से ही प्रोवाइड करेंगे. तो अभी स्कूल में क्या हुआ, कितने कॉम्पिटिटर्स ने पार्टिसिपेट किया? 35 ने किया. इन टोटल स्कूल को कितना कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा वो हमें बताना है. अगर एक का हम पता कर लें कि एक को हमें कितना देना पड़ेगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि 35 को कितना देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो वेदर वी हैव टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पेन होल्डर और एल्स टोटल सरफेस एरिया, या फिर कुछ और करना है. से ओके, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने से हो जाएगा हमारा काम. अच्छा ठीक है. अच्छा, बेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा. बेस अलग से इंक्लूड करूँ मैं इसमें? अब बेस अलग से इंक्लूड करूँ? yes exactly. If this is your pen holder, if you will find the curved surface area, then you are going to get the area of only this curved surface. आपको सिर्फ इस curved surface का ही area मिलने वाला है. You won't get the area of this base and this top. बेस और टॉप का एरिया नहीं मिलेगा. बट पेन होल्डर में जब बेस नहीं रहेगा तो पेन रखोगे, पेन जाएगी कहाँ? ज़मीन में जाएगी या कहीं और जाएगी? तो हो गया, आप कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हो गए. कंपटीशन में आपका कोई चांस ही नहीं है, उसको अब सजाने का कोई मतलब नहीं रह गया. तो फॉर दैट वी हैव टू इंक्लूड बेस ऑफ दिस पेन स्टैंड. आपको क्या करना है, इसका बेस भी इंक्लूड करना है. सो अलोंग विद द कर्व सरफेस एरिया हमें इसके साथ में इसका बेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा. हमें पेन होल्डर बनाना है, सब कुछ गिवन है. तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस फाइंड करने वाले हैं. कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस इज पाई आर स्क्वायर. फ्रॉम हियर जस्ट मेक इट सिंपल. Take pi common and r common. We are left with 2h and 1r. Now solve it. Substitute the values. Solve it. Pi is 22/7. Radius is already given. It's 3. Fine. Just substitute the values. Height is 10.5 plus radius is 3. कैलकुलेशंस करो आप लोग. कितना आएगा? 21 + 3 राइट. 7000 समथिंग. इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए. ये 21 ही आएगा, कुछ और आएगा. दिस इज 24. ऐसा कुछ ही. सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो. नहीं, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. डोंट गो विद दी लाइक फ्लो. जो सब बोल रहे हैं उनके साथ है मत चलो. मॉब के साथ चलोगे तो ऐसे काम नहीं होगा. दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 26.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. required for 35 students, right? 35 स्टूडेंट्स को कितना कार्डबोर्ड चाहिए?
226.2 into 35. Just do it and get the answer. 7917. ओके, इफ़ इट इज़ कमिंग लाइक दिस तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ इतना कार्डबोर्ड आपको चाहिए, स्कूल को प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस 35 कॉम्पिटिटर्स। ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कोन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोन का फॉर्मेशन कैसा होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से देखते हैं। इज़ एवरीथिंग विजिबल टू यू? सब क्लियर दिख रहा है? ओके फाइन। इफ़ यू विल सी, आई हैव टेकन अ पेपर विच इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल। एक मैंने पेपर लिया है, ये कुछ सर्कुलर शेप में है, ठीक है। अभी इसमें से अगर हमें कोन फॉर्मेशन करना है तो मैंने क्या किया, एक इसका छोटा सा सेक्टर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कल दैट वी कॉल अ सेक्टर, मैंने एक सेक्टर को यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया है। देन यू विल गेट अ शेप समथिंग लाइक दिस। आपको ऐसा कुछ शेप का फॉर्मेशन मिलेगा। मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया है, उसके एक छोटे से सेक्टर को कट करके अलग कर दिया है। एंड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट इफ़ यू सी, इफ़ आई विल ज्वाइन दीज टू कॉर्नर्स, अगर मैं इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हूँ, यू डोंट हैव टू ओवरलैप इट, बट फॉर नाउ मैं ओवरलैप कर रही हूँ क्योंकि होल्ड करने में दिक्कत होगी। यू विल गेट अ शेप ऑफ अ कोन। आपको एक कोन का शेप मिल जाएगा, मिलेगा, एक कोन का शेप मिलेगा। ऐसे ही कुछ हम कर रहे हैं कोन की फॉर्मेशन। तो अब देखिए यहाँ से कोन का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। To find out the area, surface area of the cone, if I calculate the area of this surface, जितना यहाँ पर रिमेनिंग फिगर है, if I calculate the area of this segment, this largest sector, तो क्या होगा, मेरा कोन का भी एरिया निकल जाएगा। बिकॉज फ्रॉम द सेम पीस ऑफ पेपर वी आर मेकिंग अ कोन। इसी पेपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोन बना रहे हैं। एंड यही पेपर आपका सर्कुलर शेप में था, फ्रॉम विच आई हैव रिमूव्ड इट्स वन सेक्टर। यही क्या है, तो अगर मैं इसका एरिया, इस रीजन का एरिया निकाल लेती हूँ तो मुझे कोन का भी एरिया मिल जाएगा। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, अब देखो इसमें से कितना पीस कट करना है। दिस इज़ नॉट डिफाइंड कि मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके इतना रिमूव कर दूँ। वी डोंट नो कितना कट करने पे कौन बन जाएगा, कितना बड़ा कौन छोटा कौन कैसे बन रहा है हमें नहीं पता, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। Just divide this area in infinite number of right angle triangles. Divide this area in infinite number of right angle triangles. जब इसको हम इन्फिनाइट नंबर में बोल रहे हो तो इसको बिल्कुल जब छोटे छोटे पार्ट्स में कट करोगे, यू वोंट गेट अ प्रॉपर ट्रायंगल बिकॉज दिस इज अ कर्व सरफेस। ये इसके कॉर्नर कैसे हैं, कर्व्ड हैं, सो यू वोंट गेट अ स्ट्रेट लाइन। बट जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट इफ़ यू डिवाइड इट इनटू अ वेरी स्मॉलर स्ट्रिप्स, बहुत स्मॉलर स्ट्रिप्स में डिवाइड करोगे, सो व्हाट विल हैपन, ये एक टाइम के लिए जो कर्व है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाएगा एंड वी कैन ट्रीट इट एज अ स्ट्रेट लाइन। इसे स्ट्रेट लाइन हम ट्रीट कर सकते हैं। So we are dividing this into the infinite number of triangles and this length is same every time because this is the radius of the circle. ये लेंथ हर बार सेम होगी। हमने कंसीडर कर लिया कि ये लेंथ L है, मैंने इसको L से डिनोट कर दिया, दिस इज L एंड दिस बेस, यहाँ पर अब बेस तो हर बार अलग अलग आ रहा है, B1, दिस इज बेस B2, दिस इज बेस B3। In this way we will get infinite number of bases till Bn। ऐसे पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो हमें बेस कहाँ तक मिलेगा, Bn तक मिलेगा। This length is L and we are cutting it into the right, we are dividing this area into right angle triangles। right angle triangle में divide कर रहे हैं। This length is L and we are dividing it into the infinite number of triangles, so the bases that we will get are are infinite। तो bases भी हमें जो मिलेंगे वो क्या होंगे, infinite होंगे। अब देखो, we know that area of a right angle triangle is half into
बेस इंटू हाइट, यही होता है. सो फ्रॉम हियर दिस इज हाफ. If I talk about this first triangle, this is half into b1 into height plus half into for this triangle height क्या है यहाँ पे, सॉरी दिस इज l, हमने l लिखा हुआ है यहाँ पे height. For the second triangle it is half into b2 into l. This height is same all the time because this is this radius of the circle. ऐसे ही we have divided it into the infinite number of triangles, so the last one will be half into bn into l. हमने इसको लास्ट n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हाफ इंटू बी एन इंटू एल आपका एरिया हो जाएगा. हाफ इंटू एल तो सब में कॉमन है, b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन टिल bn. ऐसा कुछ ही मिलेगा हमें. यहाँ तक कोई डाउट? नाउ सी व्हाट इज दिस b1 b2 bn है क्या. इन्हीं सब को ऐड करके ये जो कॉर्नर सर्कमफ्रेंस जो आ रहा है, यही आपका b1 b2 b3 bn है. यही लेंथ जो आपकी आ रही है ये वाली. सो इफ आई मेक इट अ कोन, अगर मैं इसको कोन बना दूं, सो दिस इज मेकिंग अ सर्कल. ये एक सर्कुलर शेप बना रहा है यहाँ पर, ऐसे देखो ये सर्कुलर शेप बना रहा है. एंड आफ्टर एडिंग ऑल द बेसिस वी विल गेट अ सर्कल. हमें एक सर्कल मिलेगा. ठीक है. इट मीन्स दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा आपका. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, बट फॉर दिस सर्कल द रेडियस इज l, बट फॉर दिस कोन द रेडियस विल चेंज. रेडियस आपका क्या है, इस मिड पॉइंट से, ये जो सर्कल का कोन का यहाँ पर ये बन रहा है, कॉर्नर टिप बन रहा है, वहाँ से ये यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक का आ रहा है, इस पेन से जो ये डिस्टेंस यहाँ तक का आ रहा है, ये डिस्टेंस, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कोन. कोन का रेडियस, अब ये लाइंस नहीं है, ये लाइंस आपके कोन की रेडियस नहीं है. कोन का रेडियस क्या है, इस मिड पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस, ये आपका कोन का रेडियस है. कुछ क्लियर हुआ? सो the circumference of circle is 2 pi r, but just do remember this radius is the radius of cone, not the radius of the circle. इस सर्कल का रेडियस नहीं है ये जो हम यहाँ पर r लिख रहे हैं, ये इस सर्कल का रेडियस नहीं है. ये रेडियस है किसका, इस कोन का रेडियस है, जो कोन बनने के बाद यहाँ पर सर्कल बन रहा है. ठीक है. और हाफ l था, यहाँ पर हमने हाफ l लिख दिया. दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट एज पाई आर l. क्या मिल गया हमें, पाई आर l मिल गया. ठीक. सो वी कैन सी टिल नाउ वी वर कैलकुलेटिंग ओनली कर्व सरफेस एरिया. हम सिर्फ इसके कर्व की बात कर रहे थे, बाकी हमें कौन क्लोज है, बेस है, नहीं है, उसकी हमने अभी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया. So this is the curved surface area of a cone, that is pi r l. Now coming to the total surface area. अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बेस भी आ जाएगा इसका, और बेस किस शेप में होगा, सर्कल के शेप में होगा. इट मीन्स इफ आई ऐड द एरिया ऑफ सर्कल, area of base that is in the form of a circle, if I add area of this base to the curved surface area, we will get total surface area. So from here total surface area क्या हो जाएगा, pi r l प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, ये जो आपका बेस बनेगा,
इसका एरिया कितना होगा, अब आप बताओ मुझे। इसका रेडियस देखो ये है r, जो हमने ऑलरेडी इसको r कंसीडर कर रखा है, तो रेडियस में कंफ्यूज मत होना, इसका रेडियस l मत लेने लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रखना हम कोन के रेडियस की बात करें और कोन का रेडियस ये है। मैं 3D अभी मेरे पास सर्कल कुछ है नहीं, इफ़ सपोज इसके ऊपर ऐसा कुछ मैं कवर रखूँ तो इसका रेडियस क्या होगा, ये जो इसका कवर का यहाँ सेंटर से लेकर के ये पॉइंट जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये इसका रेडियस है। यहाँ पे इसको कवर करते हैं अगर, तो हम अभी देखो इसको अगर मैं कवर करूँ इससे, तो इसका रेडियस क्या है, इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो वाला रेडियस कोन का रेडियस होगा। सो दिस इज पाई r स्क्वायर। pi r we can take common and we are left with L plus R. This is the total surface area of your cone. ये क्या होता है, आपके कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे आया, कोन का एरिया कैसे आया ये पता चला? वन मोर ट्विस्ट इज़ देयर इन केस ऑफ कोन। अब ये L की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये L नया आ गया है, हमने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया कि ये L है, ये L की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये L एक्चुअल में है क्या, देखो अगर हम ये कोन बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये L आपका है क्या, दिस इज़ कॉल्ड एज दी स्लैंट हाइट। इसको हम L को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट मतलब जो टेढ़ी हाइट है, इसकी सीधी हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट। अब इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, क्वेश्चन में दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, इजीली चुपचाप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकाल देंगे। सपोज करो क्वेश्चन में बोला कि हमें कोन की हाइट हम दे दे रहे हैं कि कोन की हाइट इतनी ऐसी कुछ है, इतनी कोन की हाइट है, हम स्लैंट हाइट नहीं देंगे, तब क्या करोगे, तब कैसे बताओगे कोन की हाइट क्या है। देखो ध्यान से देखना, आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, अपनी इमेजिनिंग पावर थोड़ा इंक्रीज करो। ये कोन है, ये कोन की हाइट है, यही हाइट होगी कोन की जो स्ट्रेट आएगा यहाँ से डिस्टेंस, यही हाइट होगी। अभी कैसे, यहाँ पर देखो थोड़ा इमेजिन करना, ये आपका यहाँ से रेडियस है, ये इसके बाउंड्री से लेकर के पेन तक के टिप तक का जो यहाँ पे लेंथ है, ये आपका रेडियस है। बाउंड्री से लेकर के टिप तक की लेंथ जो है आपकी, ये रेडियस है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये वाली लाइन देखो जो आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर में, ये हाइट जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये स्लैंट हाइट आपकी, और यहाँ से एक लाइन जो इसको ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ये पिन मेरी हाइट हो गई, ये पिन मेरी हाइट हो गई कोन की, ये मेरा L है, ये मेरा स्लैंट हाइट L है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये इसका स्लैंट हाइट L है, देखो ये इसका स्लैंट हाइट L है, और ये रेडियस इसका बेस हो गया। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस वी कैन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा, एंड L is square root of R square plus H square. So if suppose that you are given with the radius and height of the cone, then you can find out its slant height. तो आप उसकी slant height find कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट?